Good morning, students. This session is for class 8. Student, we have completed chapter 7 and its exercise in previous classes. Today we are going to study the chapter 8, that is cell structure and function. So students, you can see on your screen, this is the text given in your NCERT book. We have already discussed these things by using PPT in previous class, but today we are going to discuss these things by using text in NCERT, because some of the students are continuously saying that they are not understand some of the terms given in NCERT book, so that we are doing this. Okay, so let's start this topic. You can see the text of NCERT given on your screen. You have already learned that things around us are either living or non-living. So student, you know what are living organism and what are non-living things. So living organism have some certain characteristics, like they can breathe, they can move by themselves, they need food for their survival. So these are some characteristics of the living organism. Non-living organism does not need these things. Okay, so you can see here. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Okay, so we have discussed these functions. Can you list these functions? You can list these functions which I have discussed here. Okay, now different set of organs perform the various functions you have listed. So you can you can make a list of function of different organs, like the nose, like your eyes, like your mouth, like your tongue. Okay, leg, hand, etc. So you can list the function performed by the different organs of your body. In this chapter you shall know about the basic structural unit of an organism. So यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी और एन ऑर्गेनिज्म. तो किसी ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और उसको बोलते हैं विच इज़ द सेल, जिसको सेल बोलते हैं. तो सेल इज द बेसिक structural unit of any organ of the body. Now cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make buildings. तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ब्रिक्स का जो रोल होता है, ठीक वैसे ही रोल यहाँ पे सेल का दिखाया जा रहा है. दिस वन इज द कंपेरेटिव टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है आपको समझाने के लिए. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जैसे ब्रिक्स को असेंबल करके बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही सेल को असेंबल करके हम लोग सेल को असेंबल करके बॉडी, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है वो बनते हैं. Now let us understand, or let us study about the topic discovery of the cell. So you can see Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट हुक जो है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया है. So Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is part of the bark of a tree. Cork is part of bark of tree. ये जो cork है इसी को लिया था. He took the thin slices of cork and observed them under the microscope. तो इन्होंने जो cork के thick slices है उनको लेके माइक्रोस्कोप से उसका ऑब्जर्वेशन किया. And he noticed partition boxes or compartment in the cork slice. और उन्होंने उसमें क्या देखा? पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट. ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये वाला जो पार्ट है कॉक सेल्स
एज ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक, ये है कॉर्क सेल जिसको रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनी कॉम्ब, ये बॉक्स कैसे दिख रहे हैं, हनी कॉम्ब, देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसा ही आपको दिख रहा है, हनी कॉम्ब लाइक। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई अ वॉल और पार्टीशन। तो यहाँ देख सकते हैं हर एक जो बॉक्स है वो एक वॉल या फिर पार्टीशन से सेपरेट है। हु क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स को हुक ने क्या नेम दिया, सेल। What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscopes. Very little was known about the cell for the next 115 years after Robert Hooke's observations. Today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट हुक के बाद 150 ईयर्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज सेल के बारे में नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी के माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे। बट आफ्टर दैट जब हमने बहुत ही हाई मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप्स डेवलप कर लिए तब हमने काफ़ी नॉलेज गेन किया सेल्स के बारे में। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज नॉलेजेस। यहाँ पे देखते हैं कि सेल के जो बारे में हम लोग और क्या क्या जानते हैं, तो देखते हैं बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक जो है, ब्रिक्स ईट जानते हैं, बिल्डिंग बनाने में ईट एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, वैसे ही सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, the buildings though built of similar bricks have different design, shape and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another but all are made up of cells. तो हम देख सकते हैं जैसे ब्रिक्स से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स बन सकती हैं, वैसे ही सेल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखे आपने, काऊ, टाइगर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, देन डिफरेंट बर्ड्स। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बट सभी के जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेंस एग कैन बी सीन इजिली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो एग है, एग को इजीली हम लोग देख सकते हैं, तो क्या ये एक सेल होता है या इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल्डिंग के लिए ये एक ब्रिक की वॉल है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक को अरेंज करके एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, एक बिल्डिंग की वॉल। और इसमें ये है ओनियन पील के लिए सेल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर वेरी सिमिलर टू दी ब्रिक्स। ओके, बट ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सेल से बनते हैं। यहाँ पे ये ब्रिक है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, so figure 8.2 brick wall and onion peel। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, द एग ऑफ हेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आईज। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा है जिसको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये वन सेल ही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सेल काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं।
Now organisms show variety in cell number, shape and size. So let's see, how do scientists observe and study the living cells? This is the question. So let's see, they use microscopes which magnify the object. तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को बहुत ही बड़ी सी इमेज बनाता है, जिसकी इमेज को हम लोग देखते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इतनी बड़ी बना देता है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा सा देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट. मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट मीन्स इनकी जो इमेज, इनकी एक बड़ी सी इमेज बनाते हैं. ठीक है, स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे डाइज का भी यूज़ किया जाता है स्टडी में. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बॉडी एक ऑर्गन, जो एक ह्यूमन, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक कंप्लीट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. तो जो ऑर्गन्स है उसमें भी जो सेल, जिन सेल से वो बने हैं उनके शेप, साइज और नंबर अलग अलग होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. तो कुछ के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे. तो देखते हैं, नंबर ऑफ सेल्स. कैन यू गेज द नंबर ऑफ सेल इन अ टाल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत बड़े ट्री होते हैं या फिर जो ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट है, इसमें कितने सेल हैं, क्या ये बता सकते हैं? तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. ओके, बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स, एग्जैक्टली काउंट करना मुश्किल है. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज. देखिए ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी, इसमें भी ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं. ठीक है, और जो शेप और साइज में अलग अलग होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस. तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अ बिलियन इज 1000 मिलियन. ओके, तो 1000 मिलियन को 1 बिलियन बोलते हैं. इफ़ यू डोंट नो अबाउट बिलियन तो यू कैन फाइंड आउट मिलियन इंटू 1000 इज इक्वल टू बिलियन. एंड अ ट्रिलियन इज 1000 ऑफ बिलियन. तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिलियन जो होता है वो 1000 टाइम्स होता है बिलियन का. तो यहाँ देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें मोर देन वन सेल यूज होते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं. मल्टी मीन्स अ लार्ज नंबर और यू कैन से मैनी, सेलुलर मीन्स सेल ऑर्गेनिज्म. एंड द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट in any way affect the functioning of the organism. You will surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. Okay, so the fertilized egg cell multiplies and the number of cells increased as development proceeds. Now we are going to see some unicellular organism here. So you can see in figure 8.3 A and B, both organisms are made up of single cell. The single celled organism are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. So you can see the examples of unicellular organism. This one is the amoeba. This contains only one cell. So you can see in this picture, this one is one complete cell. Similarly, this one is the paramecium. This one is again one cell. So you can see these two organisms are unicellular, but their cell structure, their shape, their size are different, but both are unicellular organism. Uni means one, cellular means cell. It means these two contains only one cell. This one contains one cell, this one is again contains one cell.
A single cell called organism perform all necessary functions that multicellular organism can perform. A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows, and reproduces. Similar functions in multicellular organism are carried out by groups of specialized cell forming different tissues. टिश्यू इन टर्म फॉर्म ऑर्गन्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जो है ये क्या करते हैं, देखिए डाइजेस्ट करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. और ये सारे वर्क मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं जहाँ पे जो बहुत सारे सेल ग्रुप में होते हैं. ठीक है, ग्रुप में जो बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं. सो you will perform this activity in your lab when you will be in your school in future. So we will discuss this activity in your class. Okay, let's see the shape of cells. How do you define the shape of amoeba in a figure? तो आपने यहाँ पे देखें, ये देखिए पिक्चर अमीबा का है, ये देखिए. क्या इसकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री है? जैसे रेगुलर ज्योमेट्री मीन्स ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल. ओके, आपने इस टाइप के ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये रेगुलर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, किस टाइप का बोलेंगे? तो यहाँ पे कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ इसका भी देख सकते हैं. तो अब इनको क्या नेम दें, इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. So you can see how do you define the shape of amoeba in figure. You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organism. It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. So since their structure are not fixed, you cannot fix any geometry on the shape of amoeba. So these are called pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. As you learned in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं. Now what advantages does amoeba derive by changing the shape? शेप चेंज करने से कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं अमीबा को, तो देखते हैं यहाँ पे. The change in shape is due to the formation of pseudopodia which facilitates the movement and help in capturing food. तो ये जो शेप अपना चेंज करते हैं ये इनको हेल्प करता है इनके मोशन में, मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में. इसलिए ये कॉन्टिन्यूसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अ वाइट ब्लड सेल WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल. इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप. तो यहाँ पे WBC जो बॉडी में वो भी सिंगल सेल होती है और वो भी अपना शेप चेंज कर सकती है. बट वाइल WBC इज अ सेल, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है देख सकते हैं. जो WBC है ये बॉडी का एक सेल है, बट अमीबा क्या है, एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. बट WBC
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, बट दोनों ही क्या है, सिंगल सेल्ड हैं और ये दोनों ही अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल हैं तो उनके कैसे कैसे शेप हो सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। फिगर 8.4 ABC shows the different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical and elongated. In 8.4a, some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Figure 8.b, cells sometimes are quite long, some are branched like nerve cells or a neuron. In 8.c, so nerve cells receive the transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो ये है फंक्शन नर्व सेल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेल का स्ट्रक्चर, ये देखिए ये सभी डिफरेंट डिफरेंट शेप के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये राउंड है और स्फेरिकल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड में इलांगेटेड सेल दिख रहे हैं, फिगर बी। सी में यहाँ पे देखिए यहाँ दिख रहा है क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांचेज, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें ये लॉन्ग एंड ब्रांचेज के साथ है। तो ये फर्स्ट फिगर जो है ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल है, RBC ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये स्पाइंडल शेप्ड मस्कुलर सेल है, तो ये मसल में जो सेल होते हैं स्पाइनल शेप के वो है। ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये नर्व सिस्टम के सेल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो नर्व सेल है उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देख, द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाई it help to control and coordinate the working of different parts of the body. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है important function of nerve cell. Can you guess which part of the cell give its shape? कौन सा part cell का उसको shape देता है? So component of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो जो भी कंपोनेंट सेल के होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और ये मेम्ब्रेन उसको क्या देती है, शेप। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इट गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है, देखिए सबसे एक सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक होती है सेल वॉल की कवरिंग। यही सेल वॉल जो है यही क्या करती है, इस सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। बैक्टीरिया सेल आल्सो हैज सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया सेल होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होता है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल एंड इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल हैं उनमें जो आउटर कवरिंग है जिसको सेल वॉल बोल रहे हैं वही इनको शेप और रिजिडिटी देती है, ठीक है।
Next, our topic is size of cells. The size of cells in living organism may be as small as a millionth of the meter, that is micrometer or micron, or maybe as long as few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eyes. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल हैं उनकी साइज माइक्रोमीटर या माइक्रॉन बोल सकते हैं आप, बहुत छोटा होता है ये, ठीक है, माइक्रॉन से लेकर सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, मतलब ये वेरी करते हैं, बट मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं जिनको हम अनएडेड आइज मीन्स नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, तो इनको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज में आते हैं, ये सबसे छोटे सेल हैं। और लार्जेस्ट जो सेल हैं वो 170 mm into 130 mm होता है, इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। तो ये है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल, बाकी जितने भी सेल होते हैं वो इनके बीच के ही होते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, देखते हैं। बॉयल हेन्स एग, रिमूव द सेल, व्हाट यू डू ऑब्जर्व, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, the white material is albumin which solidified on boiling, the yellow part is yolk, it is part of the single cell, you can observe this single cell without any magnifying device। तो यहाँ पे एक सेल को आप बिना मैग्नीफाइंग डिवाइस के देख सकते हैं और इस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट, सो द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट। तो यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स के भी जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, छोटे एनिमल के भी सेल बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे जो एनिमल की बॉडी है उससे सेल का जो साइज है उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those of the rat, ये कोई ज़रूरी नहीं है। The size of the cell is related to its function, जो सेल का जो साइज है वो उसके फंक्शन से डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, nerve cells both in elephant and rat are long and branched, they perform the same functions दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रैट हो या फिर एलिफेंट हो, अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये दोनों में एक जैसे ही शेप के होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, दोनों में लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये दोनों एक जैसे शेप के यहाँ पे होते हैं। साइज भी लगभग सेम हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स, जैसे कि आपका बॉडी में एक बॉडी है कंप्लीट, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स, यू हैव स्टडीज इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized functions. For example, roots help in the absorption of the water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of the food. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं,
ठीक है। जैसे कि किसी ऑर्गन का फंक्शन डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, अलग अलग ऑर्गन्स के। ऐसे ही जैसे कि प्लांट में आप देख सकते हैं, प्लांट में अगर हम बात करें रूट का, तो रूट वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए फंक्शन करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का। जबकि जो लीव्स हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब वो फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गन्स इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। सभी ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से बनते हैं। और टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स में एक जैसे सेल जो कि किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड these things, that is the size of the cell, then shape, these are which one is the largest cell and the smallest. So in next session we will start from this point. Okay, so try to revise this chapter and try to draw the single cell organism like amoeba and paramecium which is given in your book. Thank you for watching this session.